બોલો. નમસ્કાર, જય જિનેન્દ્ર. વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પુરસ્કૃત અને ભદ્રેશભાઈ શાહ દ્વારા આયોજિત સુરત જૈન મંડળ યુવક મંડળ દ્વારા પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળાના ત્રીજા મણકામાં આપનું સ્વાગત છે. માનનીય ભદ્રેશભાઈ શાહને આપણે વિનંતી કરીએ કે ભદ્રેશભાઈ આપ સ્વાગત કરો. માનનીય આચાર્ય ભગવંત આપણી સાથે જોડાયા છે. માનનીય વલ્લભ વિજયજી. આચાર્ય મહોદયને વિનંતી કરીશું આપનો માઇક્રોફોન ઓન કરો અને આશીર્વચન આપો. આચાર્ય ભગવંત આપ મુખ્ય સ્ક્રીન પર છો, અમે આપને સાંભળી રહ્યા છીએ. શોર્ટ વેલકમ આપું છું સાહેબજીને, પછી સાંભળીએ. प्रणाम आचार्य भगवंत. खूब आशीर्वाद, खूब धर्म लाभ. आपको तो मंगलाचरण करूं? हाँ साहब जी, आप ही शुरू कर दो. मंगलाचरण चालू करिए. भद्रेश जी, आपनो वीडियो बंद है. ચાલુ છે. ભદ્રેશભાઈ આપની આવાજ નહીં સંભળાય છે. સહી મંગલાચરણ ચાલુ. અવાજ આવી રહ્યો છે સર. પ્રણામ, નમસ્કાર. આચાર્ય પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત ગચ્છાધિપતિ નિત્યાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં પ્રણામ, કોટી કોટી પ્રણામ. પરમ પૂજ્ય મુનિવરજી મોક્ષાનંદજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં પણ પ્રણામ. સાહેબજી પાસે આપણે માંગલિક અને મંગલાચરણ કરાવીએ તે પહેલા ખાલી 1 મિનિટમાં, પછી વિસ્તૃત વાત પછી કરીશું. આજે આ ત્રીજી પર્યુષણ વ્યાખ્યાન માળા સુરતમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને પૂજ્ય મહારાજ શ્રી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત ગચ્છાધિપતિ શ્રી નિત્યાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબથી છેક ચેન્નાઈથી આપણી સાથે જોડાયા છે. મોક્ષાનંદજી પણ છેક ચેન્નાઈથી આપણી સાથે જોડાયા છે. અને આપ બધાનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરીને, ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરી અને હું માંગલિક સંભળાવવા અને મંગલાચરણ કરવા માટે મહારાજ શ્રીને વિનંતી કરું છું. મંગલાચરણ કરું? જી સર. જી સર. પ્રણામ. નમો હરિ आवाज बंद थी गया. नमो ओवज्झायानम् नमो लोहे सवसाहुनम् एसो पंचनमुकारो सर्वपार्वपनासनो मंगलार्णव सवेसी पठमं पावई मंगलम्.
अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारिनिवारिणि अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। आप सौने खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब धर्म। સાહેબ જી કંઈક અમારી આ ત્રીજી વ્યાખ્યાનમાળા પ્રસંગે કંઈક થોડું તો ફરમાવો, વધારે આશીર્વાદ આપો સાહેબ અમને. हमारा जिन शासन ना गौरव श्रीमान भद्रेश भाई शाह परिवार द्वारा आयोजित आ प्रवचन माला पर्युषण प्रवचन माला में अमे पण आजे मंगलाचरण रूपे आपना साथे छीए। हमारा ओजस्वी वक्ता मुनि श्री मोक्षानंदजी महाराज पण पोतानुं प्रवचन आपसे। आप सौने हमारा खूब खूब शुभकामनाओं, खूब आशीर्वाद। एवी रीते आपणे देवगुरु धर्म प्रत्ये आपनी आस्था श्रद्धा वधती रहे ने आपणे खूब धर्म प्रभावना शास्त्र प्रमाण करता आपणुं आत्मकल्याण साधी सकीए। एक शुभकामना साथे आप सौने खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब शुभकामनाओं। मंगल। ખૂબ આભાર. જી ભદ્રેશ ભાઈ, શરૂ કરાવો. નરેશભાઈ. ભદ્રેશભાઈ આવી ગયા છે, મોક્ષાનંદજી ગુરુ મહારાજ. હા, પણ નરેશભાઈ શરૂઆત કરાવે એટલે નરેશભાઈ. અરે સર, હું તમારી જ રાહ જોઉં છું. મેં આપને આમંત્રણ આપ્યું કે આપ બોલો. તમને ભદ્રેશભાઈ તમને આમંત્રણ આપ્યું એમને. અચ્છા, મેં સાંભળ્યું નહીં કેમ અહીંયા આવ્યું. ગુરુ ભગવંત મોક્ષાનંદજી નમસ્કાર, પ્રણામ હાજી પરમ પૂજ્ય મોક્ષાનંદજી મહારાજ સાહેબ. અને આજે આ ત્રીજી પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળામાં જોડાયેલા તમામ ભાઈઓ બહેનો અને બાળકોને મારા પ્રણામ, નમસ્કાર. નમસ્કાર મોક્ષાનંદજી મહારાજ, આપ શ્રી હમણાં જ મારા સ્ક્રીન ઉપર દેખાયા છો.
મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા એ અમદાવાદ અને મુંબઈ એમાં છેલ્લા 100 વર્ષથી ચાલે છે, પરંતુ સંસ્કાર નગરી સુરતમાં એની શરૂઆત થઈ ન હતી. આ બે સ્થળ સિવાય ત્રીજે કોઈ જગ્યાએ એની હજુ સુધી શરૂઆત થઈ ન હતી. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી હું વિચારતો હતો કે આ પર્યુષણ માળા આપણે શરૂ કરવી જોઈએ, અને તેવામાં કોરોનાનો વિષમ પરિસ્થિતિ આવી, ઘરમાં પુરાઈ રહેવાની પરિસ્થિતિ આવી, અને ત્યારે આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળામાં ઘરે રહીને જ, ઘરે બેઠા બેઠા જ્ઞાન ગંગા વહે તેવો એક વિચાર મૂર્તિમંત થયો, અને છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ત્રીજું વર્ષ છે અમે આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાને શરૂ કરી શક્યા છીએ. કહેતા આનંદ થાય છે કે આપણું આ ત્રીજું જ વર્ષ હોવા છતાં પણ પહેલા જ વર્ષથી આપણે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ એટલે કે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના, જેને પ્રબુદ્ધ વિદ્વાનો કહીએ, આધ્યાત્મિક ચિંતકો, લેખકો કહીએ, તેવા તમામ અથવા તો તેવા ઘણા વક્તાઓને, વિચારકોને આપણે આપણા આ મંચ ઉપર, પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા સુરતના મંચ ઉપર લાવી શક્યા છીએ. લગભગ આ વખત સાથે, એટલે આ સમય પર્યુષણમાળા 3 સાથે લગભગ 40 જેટલા જુદા જુદા વિદ્વાનો આપણા આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવશે, અને તેમના વિદ્વતાભર્યા આધ્યાત્મિકતાના વ્યાખ્યાનો, પ્રવચનોનો આપણને લાભ મળશે, એના જ્ઞાનનો આપણને લાભ મળશે. એ જ શ્રેણીમાં આ ત્રીજી વ્યાખ્યાનમાળા છે. ત્રીજી વ્યાખ્યાનમાળામાં પણ ગયા વર્ષની જેમ જ છેક પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ નિત્યાનંદ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબે આપણને માંગલિક અને મંગલાચરણ કરાવીને ધન્ય કર્યા છે. ભદ્રેશજીના નેટવર્કના પ્રશ્ન થયા છે. માનનીય મોક્ષાનંદજી, આપને વિનંતી છે, આપનું પ્રવચન શરૂ કરો. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारं इंद्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानंदं नमाम्यहं. आप सभी को पर्युषण व्याख्यान माला में सम्मिलित सभी भाग्यशालियों को खूब खूब धर्म लाभ, खूब आशीर्वाद. इस वर्ष भी इस पर्युषण व्याख्यान माला में पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर एक ऐसे युग दृष्टा ही नहीं, अपितु वास्तव में युग सृष्टा, युगवीर, युग दिवाकर, अज्ञान तिमिर तरणी कलिकाल कल्पतरु, पंजाब के श्री जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्री सूर्य महाराज साहब के आदर्श धर्म और समाज के रक्षक के रूप में उनके क्रांत जीवन के बारे में कुछ चर्चा और विचारणा करने का, अपने भावों को आपके सम्मुख रखने का यह जो सुंदर अवसर मिला है, ये मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि महापुरुषों का गुणानुवाद करने से, महापुरुषों के महान व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करने से, जहां एक और हमें उनके प्रति अहोभाव जागृत होता है, वहीं दूसरी ओर
उनसे हमें प्रेरणा का प्रकाश मिलता है। किस तरह से उन महापुरुषों ने अपने समय और अपने काल में धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो उन्होंने सुंदर कार्य किए, हम भी उनका अनुसरण करते हुए किस तरह से अपने इस जीवन को, अपने इस मानव भव को किंचित सफल और सार्थक कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी में इस भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है और उनसे विभूषित इस भारत भूमि में एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर, भक्ति व सम्मान के साथ में स्मरण किया जाता है, ऐसे हैं पंजाब के श्री युगवीर जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्री स्वजी महाराज साहब। एक जैनाचार्य होते हुए भी न केवल धार्मिक क्षेत्र में अपितु उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। उनके जीवन और कार्यों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आज समय की सीमा में हम उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा और विचारना करेंगे। गुरु वल्लभ का जन्म गुजरात की बड़ौदा नगरी में हुआ। संवत 1927 को उनके पिता का नाम सेठ दीपचंद और उनकी मां का नाम इच्छाबाई था। कार्तिक शुद्धि द्वितीया भाई बीज के दिन गुरुदेव का अवतरण हुआ और दूज के चांद की भांति गुरुदेव का जीवन निरंतर आगे ही आगे एक एक कला बढ़ते हुए और वो पूर्णिमा के चांद के जैसे हो गया। 55 में ही पिता का साया उठ गया और जब माँ भी रुग्ण हो गई, अस्वस्थ हो गई और माँ भी जब विदा लेने लगी और उस समय बालक छगन माँ से कहता है कि अरे माँ, पिताजी तो हमें छोड़ के चले गए और आज तू भी यदि हमें छोड़ के चली गई तो फिर हमारा सहारा कौन? तेरे पीछे हम कैसे जिएंगे? और उस समय वो जिन शासन के रंग में रंगी हुई वो माता, वो श्राविका, वो ये नहीं कहती कि बेटा मैं तुमको रिश्तेदारों के सहारे छोड़ के जा रही हूँ, तुमको मामा चाचा के सहारे छोड़ के जा रही हूँ। वो जिन शासन के रंग में रंगी हुई वो वास्तव में एक आदर्श माता थी और उस माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत करना, भले मैं जा रही हूँ लेकिन मैं तुमको अरिहंत परमात्मा के सहारे छोड़ के जा रही हूँ, तुम अरिहंत परमात्मा की शरण में रहना। और ये कह करके माँ तो विदा हो गई, लेकिन उस बालक ने उस माँ के वचन को अपने हृदय में संभाल के रख लिया कि मुझे अब अरिहंत की शरण में रहना है। और वह अरिहंत की शरण कैसे प्राप्त होगी? तो योगानुयोग बड़ौदा में जैन शासन के एक ज्योतिर्धर तपागछ गगन दिनमणि न्यायांगो नीति जंगम युग प्रधान परम पूज्य गुरुदेव विजयानंद सूर्य जी महाराज से पधारे और यह बालक छगन उनका प्रवचन सुनने के लिए जानी शेरी के उपाश्रय में पहुंचता है। गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद जब सारी जनता वापिस लौट गई तब ये बालक उस उपाश्रय के कोने के अंदर में बैठा हो रहा और गुरुदेव ने देखा कि ये एक छोटा सा बालक अकेला उपाश्रय के हॉल में बैठा है, सभी लोग जा चुके हैं।
वह स्वयं उठ करके उस बालक के पास गए और पूछा कि अरे बेटा, क्या बात है, तू अभी तक यहाँ अकेला बैठा है? और उस समय वह बालक रोने लगा, आंसू बहाने लगा। और गुरुदेव ने कहा, बेटा तुझे क्या कोई तकलीफ है, तुझे क्या कुछ चाहिए? उस समय वो बालक कहता है, हाँ गुरुदेव, मुझे कुछ चाहिए। बोल बेटा, तुझे क्या दिक्कत है? गुरुदेव, मुझे धन चाहिए। एक छोटे से बालक के मुख से जब से गुरुदेव ने सुना कि धन चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, हम तो साधु संत हैं, हम तो धन के त्यागी हैं, हम तो धन नहीं रखते, लेकिन अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो यहाँ पर जो श्रावक आए थे उनको कह करके और तेरे में मदद करवा देता। तब वो बालक कहता है, अरे गुरुदेव, जिस धन की आप बात कर रहे हैं वह धन तो देवगुरु कृपा से हमारे पास में, प्रभु कृपा से बहुत है। मुझे वो धन नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे तो जो धन आपके पास में है मुझे वो धन चाहिए। एक छोटे से बालक के मुख से इतनी गहरी बात कि जो धन गुरुदेव आपके पास में है, अरे बेटा हमारे पास कौन सा धन है? और उस समय वो बालक छगन कहता है कि गुरुदेव, मुझे नश्वर धन नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत धन चाहिए, मुझे अक्षय धन चाहिए, मुझे संयम की संपदा चाहिए, मुझे चारित्र चिंतामणि चाहिए, मुझे धर्म धन चाहिए। एक बालक और उसके मुख से इतनी गहरी बात, गुरुदेव चमक गए। गुरुदेव ने उसको हृदय से लगाया और उसके ललाट को पढ़ा और गुरुदेव पहचान गए कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये बालक आने वाले समय में जैन शासन का उद्योग करने वाला है। ये बालक आने वाले समय में इस देश की गौरव और गरिमा को बढ़ाने वाला है। ये बालक धर्म, समाज और संस्कृति का ये प्रबल प्रहरी बनने वाला है। ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो एक कोहिनूर है। और गुरुदेव ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा चिंता मत कर, समय आने पर तुम्हें वो भी धन दिया जाएगा। गुरु आत्म ने उनके भावी जीवन को पढ़ लिया और राधनपुर में संवत 1944 में 17 वर्ष की उम्र में उस बालक छगन ने गुरुदेव आत्माराम जी के कर कमलों से संयम को स्वीकार किया और उनकी यह अब संयम जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। गुरु आत्म के साथ 9 वर्ष तक उन्होंने उनके चरण की शरण में रह करके और गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन को, गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के क्रांतिकारी कार्यों को बड़ी पैनी निगाह से, बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से देखा और वो समझ गए कि ये ऐसे गुरु हैं कि जो जैन शासन के अंदर एक युग प्रधान है। गुरुदेव आत्माराम जी मूलतः पंजाब के थे, क्षत्रिय कुल के थे और मिथ्यात्व के सघन अंधकार से निकल करके और उन्होंने जब सम्यक्त्व को प्राप्त किया तो भटक रहे जैन समाज को उन्होंने पुनः, जो हम अपने धर्म की परंपराओं को भूल चुके थे, उन सनातन और परंपराओं के साथ में हमें पुनः जोड़ा। और ऐसे गुरुदेव आत्माराम जी महाराज पिछले 300 वर्षों में जैन शासन में ऐसी कोई विभूति ना हुई थी जो कि आत्माराम जी के रूप में, विजयानंद सूर्य जी के रूप में हमें प्राप्त हुई। तो ऐसे गुरुदेव की छत्र छाया में रह करके उनके जीवन का निर्माण प्रारंभ हुआ और उस समय उन्होंने उनके छत्र छाया में ज्ञान ध्यान के फलों को चखना प्रारंभ किया। गुरुदेव आत्माराम जी महाराज वह भी देश और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को देख करके और कुछ नवीन क्रांति का उद्घोष करना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी कि जो उनके इस कार्य को, उनके इस स्वप्न को साकार कर सके। और उनकी निगाह इस बाल मुनि वल्लभ विजय के ऊपर में टिक गई कि ये बालक निश्चित ये समाज का रक्षक बनेगा, ये धर्म का उद्योग करने वाला बनेगा। और गुरुदेव ने उनको तैयार करना शुरू किया, उनको पढ़ाना शुरू किया। एक बार पंजाब के पट्टी शहर में गुरुदेव के चरणों के पास में वह बाल मुनि वल्लभ विजय जी पढ़ाई कर रहे थे
और श्रावक रोज आते, रोज देखते कि बड़े गुरु महाराज इस बाल मुनि को रोज अपने पास बिठा करके पढ़ाते हैं। तो उस समय श्रावकों ने पूछा कि अरे गुरुदेव, रोज आप इस बाल मुनि को अपने पास लेकर के पढ़ाते हो, आखिर बताओ तो सही कि इसको आप क्या पढ़ा रहे हो। तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि मैंने जो धर्म का पौधा लगाया है, उस धर्म के पौधे को सींचने वाला, उस धर्म के पौधे को पुष्पित फलवित करने वाला, उस धर्म के पौधे की रक्षा करने वाला यदि कोई भविष्य में होगा तो ये वल्लभ विजय होगा। और मैं इसको पंजाब की रक्षा का पाठ सिखा रहा हूं, धर्म और देश की रक्षा का पाठ सिखा रहा हूं। और उसी समय गुरुदेव ने उनके भावी जीवन की भविष्यवाणी समाज के समक्ष कर दी थी कि ये जो मुनि है आने वाले समय के अंदर में देश, धर्म और समाज का रक्षक, सुधारक और संरक्षक बनेगा। गुरुदेव आत्माराम जी के काल धर्म के बाद में युवा मुनि वल्लभ विजय जी के ऊपर में सारी जवाबदारी और सारी जिम्मेदारी आ गई। उस समय शास्त्रार्थ का युग था, खंडन मंडन का युग था, लेकिन वल्लभ विजय जी महाराज का अध्ययन इतना गहरा था, उनकी आगमों के ऊपर, सभी धर्म और दर्शनों के ऊपर में बड़ी पकड़ थी। आधिकारिक रूप से हर धर्म और दर्शन के विषय में वह गहराई से शास्त्रार्थ कर सकते थे। और इसीलिए प्राय करके उनके जितने भी शास्त्रार्थ हुए उसमें विरोधियों को निश्चित पराजय का सामना करना पड़ा। चारों तरफ मुनि वल्लभ की जय जयकार होने लगी और उनके पास में एक विजन था, मेरा समाज आज किस दिशा में है और यदि इसी तरह से मेरा जैन समाज अगर ये पिछड़ा रहेगा, अगर ये अज्ञानता में पड़ा रहेगा, अगर ये रूढ़िवादी ही बना रहेगा और इस समाज का यदि यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में मेरा ये धर्म, मेरा ये समाज बहुत पिछड़ जाएगा। गुरुदेव ने उसी समय कुछ बड़े बड़े निर्णय लिए और अपने समाज में फैली हुई अज्ञानता को देखा, निरक्षरता को देखा। और उस समय गुरुदेव की आत्मा कराह उठी कि अरे, यदि शिक्षा का अभाव रहेगा, संस्कारों का अभाव रहेगा तो यह समाज दूसरे समाजों के समान प्रगति नहीं कर पाएगा। धर्म की भी स्थापना तभी संभव है यदि उसके जो अनुयायी हैं वह भी शिक्षित, संस्कारी और समर्थ हों। इसलिए गुरुदेव ने धर्म की रक्षा के लिए सच्चे रक्षक पैदा करने के लिए, धर्म के सच्चे पुजारी पैदा करने के लिए उन्होंने गुरु आत्म की भावना के अनुसार सरस्वती मंदिरों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। बड़ा ही मुश्किल, आज से 100 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के समय में जब शिक्षा की कोई भी बात नहीं थी, लोग शिक्षा की उपयोगिता नहीं समझते थे और उस समय में, उस काल में ब्रिटिश साम्राज्य में गुरुदेव ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और हमारे समाज की विचारधारा भी इतनी विराट नहीं थी, संकुचित विचारधारा वाले लोग थे। और उस समय गुरुदेव ने समाज को झकझोरा, समाज को जगाया, शिक्षा की, संस्कारों की उपयोगिता बताई और एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। गुरुदेव के वचनों में जबरदस्त बल था, गुरुदेव के विजन एकदम स्पष्ट था और गुरुदेव के वचनों से प्रभावित होकर के और समाज ने उस समय सरस्वती मंदिरों की स्थापना की ओर ध्यान दिया। अनेक प्रांतों में, शहरों में, गांवों में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, गुरुकुल, बालाश्रम, नारी निकेतन और कन्या पाठशालाएं स्थापित होनी प्रारंभ हो गई। शिक्षा का प्रचार हुआ। जैन समाज ने अब अज्ञानता का त्याग किया और शिक्षण क्षेत्र के अंदर में नित नई उपलब्धियां प्राप्त करी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण श्री महावीर जैन विद्यालय है। ये गुरुदेव की अप्रतिम संस्था है। वैसे तो गुरुदेव ने देश भर में सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करी, लेकिन उसमें यदि कोई मुकुट के समान है, मणि के समान है, तो वह श्री महावीर जैन विद्यालय है। इस महावीर जैन विद्यालय ने
अपने 100 वर्षों से अधिक की यात्रा में इस देश को, इस समाज को, इस विश्व को अनेक अनेक रत्न दिए हैं। हर क्षेत्र के अंदर में महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थियों का जो योगदान है वो अपूर्व है। उस समय तो इस विद्यालय से क्या होगा ऐसा लोग प्रश्न करते थे। विद्यालय की जरूरत क्या है, एक जैनाचार्य को इस दिशा में काम करने के लिए जरूरत क्या है। भयंकर विरोध हुए, भयंकर गुरुदेव का अपमान हुआ, लेकिन गुरुदेव तो युग दृष्टा थे। 100 वर्ष बाद आने वाला मेरा समाज कैसा होगा उसको वो जानते थे, और उन्होंने ये क्रांतिकारी निर्णय लिया समाज के लिए, धर्म के लिए, और सारे विरोधों को, उन विष घूंट को वो महादेव बन करके और वो पी गए, और बड़ी शांति से, समता से वो अपना काम करते गए। उन्होंने कहा कि मुझे विरोध का जवाब नहीं देना है, मेरा काम ही आने वाले समय में मेरा जवाब होगा। और आज हम 100 वर्षों के बाद देख रहे हैं कि जो लोग, जो संत, जो आचार्य और जो समाज गुरुदेव की विचारधारा का विरोध करता आया, आज वह सभी गुरु वल्लभ की विचारधारा के अनुसार आज वह चल रहे हैं, चलने के लिए बाध्य हैं। हमें विचार आता है कि यदि उस समय गुरुदेव की दृष्टि को समझ लिया होता, गुरुदेव की क्रांतिकारी विचारधारा का साथ दिया होता, तो आज हमारे समाज की स्थिति कहां से कहां होती। उस अकेले युगवीर ने जब समाज के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, आज समाज को स्वावलंबी बनाने का स्वप्न देखा, स्वावलंबी बनाया, साधर्मिक को पीड़ाते हुए देखा, तो उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और साधर्मिक को सद्धर किया, उसको समाज में सम्मान दिया, स्वावलंबी बनाया, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करी, नारी को, स्त्री को उन्होंने सम्मान दिया, साध्वी जगत का उद्धार किया, साध्वियों को भी उन्होंने प्रवचन करने की आज्ञा दी। ये धार्मिक क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति थी। आज भी अनेक समुदायों में साध्वी जी को प्रवचन की अनुमति नहीं है, लेकिन वो गुरु वल्लभ थे जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति करी कि जब एक साध्वी भी आगमों का अध्ययन करती है, उसके पास में भी बुद्धि है, उसके पास में भी प्रतिभा है, उसके पास में भी वक्तृत्व शक्ति है, और वो भी प्रेरणा दे सकती है, तो फिर एक साध्वी को हम केवल उपाश्रय की 4 दीवारी में कैद कैसे कर दे। उसके भी ज्ञान का सदुपयोग समाज को मिलना चाहिए। तो गुरुदेव ने क्रांति करी और उन्होंने स्वयं अपनी उपस्थिति के अंदर में साध्वी जी भगवंतों को भी पाठ के ऊपर में प्रवचन करने की आज्ञा फरमाई। सारा समाज देखता रह गया, स्तब्ध रह गया, लेकिन गुरु वल्लभ ने उन क्रांतिकारी निर्णयों के समक्ष हुए विरोध को बिल्कुल भी उन्होंने कोई आश्रय नहीं दिया और वो आगे बढ़ते गए। आज साध्वी समाज का जो उत्कर्ष दिखाई देता है, आज जो साध्वियां समाज और धर्म के कार्यों में जो इतना संलग्न दिखाई देती हैं, वह सब श्रेय गुरु वल्लभ को जाता है। और गुरुदेव ने उस जमाने के अंदर में हजारों हजारों की जनमेदनी को धर्म वाणी सुनने को मिले, जिन वाणी सुनने को मिले। गुरुदेव की प्रवचन सभाओं में 10-10 हजार की जनमेदनी प्रतिदिन के प्रवचन में रहती थी। उपाश्रय में प्रवचन हो पाने शक्य नहीं थे। बॉम्बे में होते थे तो चौपाटी के मैदानों में गुरुदेव के प्रवचन होते थे। लोग गुरुदेव को सुनना चाहते थे। गुरुदेव की वाणी में जादू था, गुरुदेव की वाणी के अंदर में एक अद्भुत कशिश थी और लोग खींचे चले आते थे। केवल जैन नहीं, गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए हर धर्म जाति के लोग खींचे चले आते थे, क्योंकि गुरुदेव एक मानवतावादी संत थे। वो किसी धर्म विशेष के अमुक अमुक बंधनों में बंद करके जीने वाले संत नहीं थे। उनकी विचारधारा बड़ी खुली थी, वो खुले मन के संत थे और उन्होंने सभी धर्म और जातियों को मानवता के नाते एक मान करके और सबकी भलाई के लिए महावीर की वाणी को घर घर तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, हर धर्म जाति के लोग गुरुदेव के पास में आते थे। अब गुरुदेव की सभा में हजारों लोग होते थे। गुरुदेव के प्रवचन हर व्यक्ति सुन सके, और उस समय गुरुदेव ने क्रांति करी और गुरुदेव ने सबसे पहले ध्वनि वर्धक यंत्र का प्रयोग किया, माइक का प्रयोग किया। और ये माइक का प्रयोग भी
एक साधु संस्था के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी। लोग उसको समझ नहीं पाए और लोग रूढ़िगत ही रह गए, लेकिन उससे हजारों हजारों का मानस परिवर्तित हुआ। हजारों हजारों लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। लाखों लोगों ने शाकाहार को अपनाया, व्यसन मुक्त जीवन को अपनाया, भगवान महावीर के अनुयायी बने। लेकिन रूढ़ि चुस्त लोगों ने गुरुदेव का केवल विरोध करने के अलावा और कोई कार्य न किया। लेकिन ये क्रांतिकारी महावीर, ये महान संत निरंतर चलते रहे, बढ़ते रहे। और गुरुदेव ने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए जिस तरह से अपने जीवन की बाजी तक लगा दी, गुरुदेव तीर्थों की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, जिनवाणी और आगमों की रक्षा के लिए हर तरह से सावधान थे। पालीताना जिस समय वहां पर टैक्स लगाया जाता था, हर यात्री के ऊपर में वहां टैक्स लिया जाता था, और उसके विरोध में भी गुरु वल्लभ ने खुले पत्र लिखे और प्रशासन और सरकार के आगे उन्होंने अपनी बात रखी। और सभी संघ और संस्थाओं के सहयोग से गुरु वल्लभ की आवाज की बुलंद आवाज के साथ में वह पालीताना से लिया जाने वाला जो मंडू का टैक्स था वह भी समाप्त करने के अंदर में गुरुदेव का आशीर्वाद मुख्य भूमिका के अंदर में आया। गुरुदेव ने श्रमण जगत को एक करने के लिए अनेक सम्मेलनों के प्रथम सारथी यदि कोई थे, सभी समुदायों को, तथागत को एक करने का जिन्होंने भगीरथ प्रयास किया, वह भी गुरु वल्लभ थे। सभी को एक पाठ के ऊपर लाने वाले। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि हम सब एक तो हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हमारी दिक्कत कि एक दूसरे के आगे झुके कौन। लेकिन अगर जैन संघ एक होता है, सभी आचार्य एक होते हैं, तो सबकी एकता के समय सबसे पहले मैं अपनी आचार्य पदवी तक त्याग करने को तैयार हूं, सबसे छोटा साधु बनने को तैयार हूं, मैं सबको वंदना करने के लिए तैयार हूं। और बताओ मुझसे क्या चाहते हो। जैन संघ यदि एक होता हो और मुझे अपनी आचार्य पदवी का भी त्याग करना पड़ता हो, तो सबसे पहले मैं अपनी आचार्य पदवी का त्याग करूंगा। ऐसी उच्च भावना, ऐसी उदात्त भावना गुरुदेव के जीवन के अंदर में दिखाई देती है। उन्हें कोई पद से मोह नहीं था। वो तो केवल कहते थे कि मुझे जुबानी बातों से संतोष नहीं है, तुम खाली बातें करते हो, मुझे तो काम दो, मुझे काम चाहिए और मुझे काम में ही विश्वास है, इसलिए जुबानी बातों से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। वह एक बार पाटन पधारे और पाटन के अंदर गुरुदेव ने देखा कि यह महाराजा कुमारपाल की नगरी है और यहाँ पर एक सुंदर ज्ञान भंडार की स्थापना करनी है। और उन्होंने आचार्य हेमचंद्राचार्य के नाम से एक ज्ञान भंडार बनाने का प्रस्ताव रखा, लोगों को प्रेरित किया, लोगों को कहा कि आचार्य हेमचंद्र ने अपने जीवन के अंदर में कितने कितने साहित्य का सृजन किया है। ये पाटन एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर एक प्राचीन ज्ञान भंडार होना जरूरी है। उस समय कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के राशि लिखना प्रारंभ किया। बहुत दिन बीत गए। आखिर गुरुदेव ने पूछा कि इतने दिन हो गए, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। उस समय जब पता चला कि गुरुदेव हमें समाज की तरफ से जो प्रतिभाव मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा, गुरुदेव ने जैसे यह सुना और अगले दिन गुरुदेव ने अपनी प्रवचन के अंदर में ज्ञान की उपयोगिता के ऊपर में, प्राचीन ग्रंथों की उपयोगिता के ऊपर में और पाटन के इतिहास के ऊपर में, हेमचंद्राचार्य की महान साहित्य यात्रा को लेकर के और वर्तमान में जैन शास्त्रों की दुर्दशा को लेकर के ऐसा प्रभावशाली और मार्मिक चित्र खींचा कि उनका प्रवचन सुन करके महिलाओं ने अपने गहने उतार दिए, पुरुषों ने अपनी कंठियां और अंगूठियां उतार दी, जिनके जेब के अंदर में नगद था उन्होंने वो पैसों के ढेर वहां पर लगा दिए। और पहला अवसर था इतिहास के अंदर में कि किसी आचार्य का प्रवचन सुन करके और वहां पर सोने के गहनों का ढेर लग गया, नोटों के ढेर लग गए और वहां पर हेमचंद्राचार्य ज्ञान भंडार का निर्माण हुआ।
और इस तरह से गुरुदेव की प्रवचन छटा ऐसी थी कि लोग उनके प्रवचन को सुन करके यदि वीर रस का वर्णन आता तो उनकी भुजाएं फड़कने लगती, और भक्ति रस का वर्णन आता तो लोग परमात्मा और आत्मा के साथ में एक मेक हो जाते, और साधर्मिक की दुर्दशा का वर्णन आता तो आंखों में से सावन भादो बहने लगते। इस तरह से गुरुदेव के प्रवचन बड़े ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी और आत्मस्पर्शी हुआ करते थे। गुरुदेव के प्रवचनों में राजा, महाराजा, नवाब, सेठ, साहूकार सभी लोग आते थे। राजा से लगा करके सामान्य गरीब तक गुरुदेव की प्रवचन सभाओं में आकर के और कुछ समझा और जाना करते थे। गुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर में जैन समाज की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं बनाई। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आज की तारीख में हमें अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और जिस समय समाज की रक्षा का प्रश्न आया, गुरुदेव 1947 में गुजरानवाला में थे और उस समय भारत विभाजन की बातें चल रही थी। जैसे ही मालूम पड़ा कि ये गुजरानवाला शहर ये पाकिस्तान के अंदर में आ रहा है और पंजाब के विभाजन के साथ ही, भारत के विभाजन के साथ ही यह गुजरानवाला पाकिस्तान में रह जाएगा, उस समय गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है, चातुर्मास का समय है। उस समय भी चातुर्मास का समय था। गुरुदेव पाकिस्तान में गुजरानवाला में रह गए, हाहाकार मच गया, चारों ओर कौमी हिंसा, आगजनी की घटनाएं, कत्लेआम हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हैं, मार काट मची हुई है, आग की लपटें उठ रही हैं, अल्लाहू अकबर के नारे चल रहे हैं। और ऐसे भयंकर वातावरण के अंदर में गुरुदेव गुजरानवाला में विराजमान है। सभी चिंतित हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन गुरु वल्लभ निश्चिंत हैं। मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ गुरु आत्माराम जी हैं और मेरे साथ में संघ की शक्ति है। जब तक मेरे समाज का एक बच्चा भी यहाँ पर असुरक्षित है, मैं अपनी जान बचा करके भारत नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मुझे समाज की रक्षा करनी है, मुझे संघ की रक्षा करनी है। मैंने दीक्षा ली है, मेरे ऊपर आचार्य पदवी की जिम्मेदारी है और चतुर्वेद संघ के योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है। इसलिए मैं अपनी जान बचा करके अकेला भारत आ जाऊं और मेरा समाज यहाँ पर रखड़ जाए और मौत की भेंट चढ़ जाए, ये मुझे कदापि मंजूर ना होगा। जो विजय वल्लभ एक जैन साधु होने के नाते एक छोटी सी कीड़ी को भी मरते हुए देख नहीं सकते, एक छोटे से छोटे जीव को भी दुखी होकर के जिनकी आंखों से आंसू निकल आते थे, और वो वल्लभ पाकिस्तान के उस भयानक मंजर में कत्लेआम हो रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, खून की नदियां बह रही हैं, और उस वातावरण को आंखों के सामने देखते हुए भी कितने कठोर रहे होंगे और कितने दृढ़ रहे होंगे कि उन्होंने अपने समाज की रक्षा के लिए वहां पर जीना और मरना तक कबूल कर लिया। आखिर गुरुदेव का पुण्य बल, गुरुदेव का ज्ञान बल, गुरुदेव का चारित्र बल। और कहते हैं कि गुरुदेव जिस उपाश्रय में थे वहां पर बाहर से बम गिराए गए, लेकिन गुरुदेव के उस चारित्र बल के प्रभाव से कोई भी बम उस उपाश्रय में फूटा नहीं, वह बम फेल हो गए और श्रावकों ने गुरुदेव के इस चारित्र बल को नमन किया। आखिर गुरुदेव के पुण्य प्रताप से सारे जैन समाज को पाकिस्तान से सुरक्षित भारत लाने वाले यदि कोई थे तो एकमात्र जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। कितना बड़ा उन्होंने जोखिम, लेकिन जब वो समाज को लेकर के भारत आए, अब
सारा समाज अपने घर को, परिवार को, व्यापार को, सबको छोड़ करके आया था। सब निराधार हो चुके थे। किसी के पास ना धन था, ना मकान था, ना व्यापार था। सब अनाथ बन चुके थे। और उस समय उनको वापस स्वावलंबी बनाने की, उनको स्थिर करने की, उनको वापस बसाने की, उनको सम्मान देने की सारी जिम्मेदारी इस अकेले संत विजय वल्लभ सूरी जी महाराज के ऊपर में आई। और उन परिस्थितियों में किस तरह से उस गुरु वल्लभ ने समाज की रक्षा करी, संघ की रक्षा करी, और वापिस उस उजड़े हुए उस चमन को वापिस उन्होंने आबाद किया, और वापिस सभी को उन्होंने धर्म से जोड़ करके और पुनः समृद्ध बनाया। आज जैन समाज के अंदर में जो समृद्धि दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है, चाहो जलाली दिखाई देती है, आज जो हमारे जैन शासन के अंदर में जो भी ऊंचाइयां और उपलब्धियां दिखाई देती हैं, उसका श्रेय हम उन महान पूर्वाचार्यों को देते हैं। तो उसमें एक नाम आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब का भी है। गुरुदेव के समय में अनेक प्रकार की रूढ़ियां समाज के अंदर में प्रचलित थी, लेकिन गुरुदेव ने एक बात मन के अंदर में बिठा ली थी कि जिन रूढ़ियों से समाज का कोई भला नहीं होता, जो अर्थहीन है, उन रूढ़ियों को छोड़ने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। और जो परंपराएं धर्म और समाज के लिए पुष्टिकारक हैं, उनको उन्होंने अपनाए भी रखा। और जिन रूढ़ियों को तोड़ना चाहा, उनको उन्होंने तोड़ करके बाहर भी निकले। लेकिन गुरुदेव ने जो भी कुछ किया, वो सब धर्म और महावीर के सिद्धांत और संदेशों के अनुरूप किया। उन्होंने धर्म से, मर्यादाओं से बाहर जाकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया। उन्होंने जो भी कुछ किया, वह सब मर्यादाओं के अंदर में रह करके किया, क्योंकि वह एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता महापुरुष थे। किस काल में, किस समय में क्या परिवर्तन लाना है, कितना परिवर्तन लाना है, कितनी जरूरत है, कितनी अपेक्षा है, उतना वह निर्णय लेने में संकोच नहीं करते थे, और सत्य निर्णय लेने में वह कभी परवाह भी नहीं करते थे। ऐसे गुरु वल्लभ, जिन्होंने सबसे बड़ा जो विषय था वह देव द्रव्य और साधारण द्रव्य का रहा। और धार्मिक क्षेत्र के अंदर में एक बात चली, और उस समय आया कि ये जो स्वप्नों का द्रव्य है, ये कहाँ ले जाना चाहिए। उस समय विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब ने बिल्कुल खुले विचारों के साथ में इस बात के समर्थक बने, ये जो बोलियां हैं स्वप्नों की, ये साधारण खाते में ले जाने के लिए उन्होंने बात की। तो इस तरह से गुरु वल्लभ एक दूरदर्शी आचार्य थे, और आज भी गुरु वल्लभ के संदेशों को, उनके आदर्शों को मानने वाले श्री संघ स्वपन द्रव्य को आज भी साधारण में ले जाते हैं। भले सारे देश के अंदर में देव द्रव्य की व्यवस्था है, लेकिन गुरु वल्लभ ने क्रांतिकारी निर्णय लिया और स्वपन द्रव्य को साधारण द्रव्य में ले जाने का समर्थन किया। समकालीन आचार्यों ने गुरुदेव के अनेक विचारों का विरोध किया, और इस तरह से कईयों ने तो गुरुदेव के विरोध को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उनके विरोध में ईर्ष्या की जलन अधिक थी, और कुछ ऐसे आचार्य थे कि जिनका संबंध विजय वल्लभ के साथ सौहार्दपूर्ण था। वे ना तो विरोध करते थे और ना समर्थन, तटस्थ रहे। कुछ आचार्य ऐसे भी थे जो विजय वल्लभ सूरी जी के महाराज के विचारों से पूर्ण सहमत थे, पर विरोध के डर से कोई नया कदम नहीं उठाते थे। आज कई विरोधी आचार्य, मुनि एवं श्रावकों के मन में लग रहा है कि वर्षों पहले विजय वल्लभ ने जो कहा वह पूर्णतया ठीक था। वे अब पश्चाताप की आग में सुलग रहे हैं। उस समय अगर सभी आचार्य विजय वल्लभ के पथ पर चलते, तो आज जैन धर्म, समाज और संस्कृति का इतिहास कुछ अलग ही होता। आचार्य विजय वल्लभ का इस धरती पर अवतरित होना एक चमत्कार ही था। विजय वल्लभ सूरी जी महाराज के जीवन के साथ अनेक चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हैं। सच तो यह है कि ना वे चमत्कार करते थे और ना चमत्कारों में विश्वास रखते थे, पर चमत्कार स्वयं घटित हो जाते थे। इन चमत्कारों का महत्व उनके भक्त वर्ग के लिए हो सकता है,
पर उनके लिए तो कोई महत्व न था। संसार में कुछ ऐसी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनका प्रत्येक व्यवहार संसार के लिए चमत्कार होता है। ऐसे संतों के कई उदाहरण हैं। हेमचंद्राचार्य, सिद्धसेन दिवाकर, महायोगी आनंदगण, नानक, कबीर, तुलसी। आधुनिक समय में भी ऐसे कई महापुरुष हुए हैं। रमण महर्षि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि अनेक ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं। चमत्कारों का राज यही होता है कि उनमें आत्मविश्वास होता है, संयम और चारित्र की प्रबल शक्ति होती है, जो आज जनता में नहीं है। चमत्कार स्वयं घटित होते हैं और वो श्रद्धा से घटित होते हैं। आज भी पंजाबी गुरु भक्त गुरु वल्लभ को भगवान के रूप में मानते हैं। उनको जीवन देने वाले, उनका रक्षण करने वाले, उनका संरक्षण करने वाले, अगर कोई सारे जीवन को खपा देने वाले पंजाब के जो प्राण बन गए, ऐसे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुखदेव जी महाराज हुए हैं। और ऐसे अखंड बाल ब्रह्मचारी, संयम और चारित्र की साक्षात प्रतिमा थे। उनमें अद्भुत आत्मबल था, आत्मविश्वास था, आत्म तेज था। अगर उनके आगे बम भी फूटते थे तो विचलित ना होते थे। बम को पानी बना देने की ताकत गुरुदेव के संयम जीवन के अंदर में थी। चारित्र के प्रभाव से उन्हें वचन सिद्धि मिली थी। जो व्यक्ति समाज का गुरु हो और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करेगा तो स्वभावतः समाज उसके लिए प्राण न्यौछावर करेगा। विजय वल्लभ का विशाल भक्त वर्ग उनके लिए प्राण न्यौछावर करता था, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी और चाहे पंजाबी। पंजाब की भूमि तो वैसे भी समर्पण की भूमि है। पुरानी पीढ़ी आचार्य विजय वल्लभ को समर्पित थी। नई पीढ़ी में संस्कार, श्रद्धा और भक्ति का स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। श्रद्धा और भक्ति की रिक्तता से भरी नई पीढ़ी को संस्कार निष्ठ बनाना अत्यंत आवश्यक है। युग परिवर्तन की दिशा में तेजी से दौड़ रहा है। गुरु भक्तों की पुरानी पीढ़ी को चाहिए कि वे नई पीढ़ी को सुसंस्कारों से सिंचित कर सही राह दिखाएं, तभी गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। यही गुरुदेव के प्रति हमारी सच्चा तर्पण होगा। आचार्य विजय वल्लभ सुरेश जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सर्वदेशीय और बहुआयामी था। उन्हें गए समय बीत चुका है, पर उनके कार्य और विचार सदा जीवंत रहेंगे, सदा हमारे लिए प्रेरणा का प्रकाश बिखेरते रहेंगे। वल्लभ शासन में उनकी धुरा को आज जिन्होंने वहन किया है, जो वल्लभ ध्वज को लेके चल रहे हैं, जो गुरु वल्लभ के मिशन को लेके चल रहे हैं और जिनमें वल्लभ की छवि दिखाई देती है, जिनमें वल्लभ का व्यक्तित्व दिखाई देता है, ऐसे उन्हीं के वर्तमान समुदाय के पट्टधर तथा गच्छाधिपति शांति दूत आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद श्री जी महाराज साहब हैं कि जो इस वल्लभ युग को, इस वर्तमान युग को, उस वल्लभ के सपनों को साकार करने के लिए हर तरह से वह अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। ऐसे गुरुदेव नित्यानंद श्री जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में हमारा ये संघ, हमारा ये समाज और हमारा ये राष्ट्र निरंतर प्रगतिशील होता रहे और हम भी इस समाज की रक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने संघ की उन्नति के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए हम भी संकीर्ण विचारधाराओं का त्याग करके खुली सोच के साथ में, विराट विचारधारा के साथ में, उदारता के साथ में हम सभी मिलकर के एक महावीर के झंडे तले सब मिलकर के एक होकर के एक लय से, एकता के साथ, संगठन के साथ में हम जिन शासन की जय बुलाएं और जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में आगे ले जाने के लिए हम सभी मिलकर के कार्य करें और 1000 गुना ताकत के साथ में हम आगे बढ़ जाएं। देश का बच्चा बच्चा इस धर्म, शासन और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, तभी हम इस गुरु वल्लभ के सामाजिक और राष्ट्रीय क्रांति के मिशन को आने वाली पीढ़ियों तक, सदियों तक पहुंचा पाएंगे, जीवंत रख पाएंगे। ऐसे गुरु वल्लभ के चरणों में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के चरणों में अपने शत शत श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज व्याख्यान माला के प्रथम दिन और प्रथम व्याख्यान के अंदर में उस गुरु के नाम से
जो हमने आज प्रारंभ किया है, निश्चित उनका भी दिव्य आशीर्वाद हमारे साथ में होगा। और आप सभी जो इस व्याख्यान माला का संचालन कर रहे हैं, हमारे चाहे श्री भद्रेश भाई हों, चाहे हमारे नरेश भाई हों, पूरी उनकी टीम बहुत बहुत अनुमोदना की पात्र है, आभार की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है। इसी तरह से आप प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन करके हजारों हजारों लाखों लाखों भाविकों तक यह जो विभिन्न विषयों के ऊपर में बातें हैं, गहरी बातें हैं, विद्वानों की जो बातें हैं, प्रबुद्ध जनों की जो बातें हैं, उनको पहुंचाने का कार्य करते रहे। निश्चित हमारे समाज को एक नई राह मिलेगी, एक नई ज्योति मिलेगी, एक नया प्रकाश मिलेगा और हम अपने इस मिशन के अंदर में सफल बन सकेंगे। बहुत बहुत अनुमोदना के साथ, कुछ गलत कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अद्भुत अद्भुत साहब जी, प्रणाम, मथेण वंदामि। हम इसीलिए तो रुके थे साहब आपके लिए कि आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी, पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी का जो जीवन वृत्तांत है, क्यों हमने धर्म, समाज, रक्षक, क्रांतिकारी, वो 4 शब्दों का यूज किया। धर्म, समाज, क्रांतिकारी, वो चारों को आपने 100% साहब जी आज न्याय दिया। मैं सोच रहा था कि अभी तक पाकिस्तान की बात नहीं आई, टाइम होने जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन साहब आप अद्भुत वक्ता भी है, महाराज जी है, आपका चारित्र में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आप साहब जी ने गजबनाक, आपके जीवा पे सरस्वती जी का वास है और हम सब धन्य है साहब आप जी को। आपको आज हम प्रथम वक्ता के रूप में पाके हम सब धन्य है साहब जी, क्योंकि मैं और मेरे साथियों सर SMJV के श्री महावीर जैन विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन के, उसको तो सब ये पता है काफी थोड़ी चीजें, लेकिन बाकी के लोगों को ये पता नहीं है। और अभी जो ये 1 साल YouTube पे ये रहेगा और हम उसको बार बार उसको वापस रखेंगे YouTube पे लोगों के लिए, और वो लोगों को जो पता चलेगा वो सामान्य लोगों को पता नहीं चलता। इसी वजह से मैंने ये एक सब्जेक्ट रखा था। और देखिए विटंबना कैसी है, मैंने सोचा था ये सब्जेक्ट रख के कि साहब जी शायद जुड़ न पाए चेन्नई से, तो थोड़ी देर मैं बोलूंगा क्योंकि मैं कुछ विजय वल्लभ से बारे में जानता हूं। और फिर मैंने आज हमारे भाविन भैया है जो बहुत बढ़िया जैन मोटिवेटर है, जैन लेक्चरर है, डॉक्टर जीतू भाई हमारे ही महावीर जैन विद्यालय के जो पास स्टूडेंट है, उनके बच्चे हैं, वो आज पूरे दुनिया भर में मोटिवेटर के रूप में जानीते हैं। तो उनको मैंने साइड पर तैयार रखा था कि यदि चेन्नई से साहब जी या तो वातावरण की वजह से या तो किसी भी वजह से न जुड़ पाए, तो मैं और आप मिलके ये 1 घंटा निकालना है। मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं, वो मैं बोलूंगा, फिर आप और किसी बात पे बात ले लेना। लेकिन देखिए साहब, आपका तो नेट बराबर रहा, लेकिन मेरा नेट खलास हो गया। मुझे अफसोस है और मैं माफी चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ सभी को कि मुझे मेरा नेट की वजह से मैं बोलता रहा और कब बिजली नेट चला गया पता न चला। मुझे नीचे की ऑफिस में से मेरे ड्राइंग रूम में वापस आना पड़ा, काफी दौड़ धाम धूप हो गई, इसलिए आपको सबके पास में क्षमा चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। हमारे दूसरे बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल भाई देसाई आ गए हैं, मैं उनको देख सकता हूँ। और ये भी मेरी धन्यता है कि पद्मश्री लेखक, चिंतक, व्हाट नॉट, अभी आखिरी छेल्ली एक बात करके मैं नरेश भाई को उनका डिटेल परिचय करने के लिए दे दूंगा माइक। लेकिन आखिरी बात में सूरत में उनको नर्मद सुवर्ण चंद्रक से नवाजा गया। ये एक 4 या 5 दिन पहले की ही बात है कि उनको सब सुवर्ण चंद्रक, मुझे नहीं लग रहा कि सुवर्ण चंद्रक उनके पास कोई कम होंगे, लेकिन ये सूरत का सदनसीब है, ये नर्मद सभा का सदनसीब है, क्योंकि मैं भी उसके साथ जुटा हूं कि हमको ये गौरव प्रदान करने का मौका मिला डॉक्टर कुमारपाल भाई जी को।
खूब खूब मैं आभारित हूँ मोक्षानंद जी गुरु जी, खूब खूब आभारित हूँ अगर- बड़े साहब जी का। मैंने बड़े साहब जी का पिक्चर बीच में रख दिया है कि वो मुझे आशीर्वाद देते रहने वाले ही है पूरी ये व्याख्यान माला में, मुझे शत प्रतिशत ख्याल है। और मैं बाकी समय जरा भी गवाए बिना नरेश भाई को एक योग्य परिचय कुमारपाल भाई देसाई का देने के बाद तुरंत ही कुमारपाल भाई जी को हम प्लेटफॉर्म दे देंगे। नरेश भाई प्लीज। जी हाँ, मोक्षानंद जी कुछ कहना चाहते थे सर जी। हाँ, कुछ बोलना चाहते थे मोक्षानंद जी गुरु जी? ना बस यही था कि भी यहाँ चेन्नई चातुर्मास में थोड़ा आपके तो समाचार आ रहे थे इस कार्यक्रम के लिए, पर यहाँ की अनुकूलता मैं देख रहा था कि रात्रि के समय में क्या यहाँ पे मुझे अनुकूलता होगी ऑनलाइन आने में, इसीलिए मैं अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन देवगुरु कृपा से और आपकी प्रबल भावना से आज इसमें जुड़ गया, तो मुझे भी इसका संतोष है कि इस व्याख्यान वाला में मैं भी आपके साथ हूँ। खूब खूब आभार। धन्यवाद मोक्षानंद जी, प्रणाम। जी धन्यवाद साहब जी, अनुकूलता हो तो हमारे साथ ये पूरे 8 दिन रहिए जी और आशीर्वाद जी जी दीजिए। जी बिल्कुल। તો મિત્રો, અમને આજ પહેલા જ દિવસે અત્યંત સુંદર એવું પ્રવચન સાંભળ્યું અને હું તો દિગ્મૂઢ થઈ ગયો મોક્ષાનંદજીને जिस तरह से आचार्य भगवान का जो परिचय करवाया, और ऐसी भी हस्ती है, ये मेरे लिए तो बिल्कुल नई बातें थी, इसलिए मैं काफी प्रभावित हूँ। मोक्षानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से और कितनी कितनी मुसीबतों में से किस तरह से संत आगे बढ़ते हैं वो आपने हमें उनका परिचय दिया। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।